Assalamu alaikum, guys. Welcome to Digital Talks with Amna. I'm Amna Anis, and today the guest that we have is a very honorable and esteemed guest that we have. He is none other than Sir Ali Janjua. He is the co-founder and CEO of Work. Work is basically a modern day telemarketing company, which basically has 500 plus employees. He is also the CEO of Insured for Life, a full service insurance agency which is focused on final expense and Medicare space. Welcome, Sir Ali Janjua. How are you doing? Assalamu alaikum. Welcome, Alhamdulillah, I'm doing. Thank you for asking. sir. Great, sir. Great. Sir, could you tell us a little about yourself, as in what you do, and a little about yourself, maybe some personal thing about you? So मैं सबसे पहले जो है, I'm gonna share my background story, exactly how I got to where I am today, Alhamdulillah, and how I got here and what I did to get here, so other people can learn from it. My father passed away when I was 7 years old, और मैं काफी छोटा था. मेरे दो बहन भाई हैं, वो मुझसे छोटे थे. तो my mother raised me as a single child, as a single parent. मतलब कि मेरी माँ ने हमें जो है वो as a single mother, struggling mother बड़ा किया. Because of lack of finances, हम अपनी education खत्म नहीं कर सके थे. मैं, मेरा भाई, हम दोनों ने young age पे काम start किया. जिस टाइम पे हमने काम स्टार्ट किया उस टाइम पे ऐसे हालात थे कि हम एक घर में रहते थे, तो उसका किराया था तकरीबन 11,000 रुपए, और वो हमें मालिक मकान ने घर से निकाल दिया था because we could not afford to pay that. So we were literally on the streets. लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये कि मेरे वालिद साहब जो है, his name is Altaf Janjua, and he was a big shot. He had a lot of land. We were actually one of the first private landholders in रावलपिंडी, और पहली टाउन सोसाइटी जंजुआ टाउन के नाम से उन्होंने लेट 1980s में लॉन्च की थी. तो it was a huge success. लेकिन when he passed away, तो unfortunately like it happens in our society, लोगों ने वो जो है ना सब कुछ छीन लिया और हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था. So 17 साल की उम्र में मैंने काम स्टार्ट किया. एजुकेशन ड्रॉप आउट करना पड़ा बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे टू पे फॉर स्टडीज. एंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, टेलीमार्केटिंग जॉब थी, कॉल सेंटर जॉब थी. मेरी पहली सैलरी थी 6,000 रुपया, 6,300 रुपए थी पहली सैलरी. और मैं एक दोस्त से 100 रुपया उधारा लेकर इंटरव्यू देने गया था एक वैन के ऊपर. वहां से स्टार्ट जब किया तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या नहीं है, मैंने ये देखा कि मेरे पास क्या है, और वो थी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और टाइम था. और अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी और टाइम को सही इस्तेमाल करूं तो मैं कहीं ना कहीं जिंदगी में पहुंच सकता हूं. I worked at that company for 15 years. CSR से मैं बना, लीडरशिप में गया, लीडरशिप से डायरेक्टर बना, डायरेक्टर से इवेंचुअली 10 साल काम करने के बाद वहां पर मैं कंपनी का को ओनर बन गया था, और उस कंपनी को अभी भी मैं को ओन करता हूं. वो बिजनेस को हमने काफी बड़ा किया, पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की. फिर 2017 में मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया वर्क के नाम से, एंड वर्क हमने 8 एम्प्लॉइज से स्टार्ट किया था. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 500 प्लस हेड काउंट. एंड सबसे जबरदस्त बात ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे थ्रू ये जो भी मुझे कैपेबिलिटी दी, उसकी वजह से हमने बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की हैं, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट किया है और बहुत सारे लोगों को हेल्प किया टू बी सक्सेसफुल. सो as far as my background is concerned, that is a short 2-minute background of exactly जो है मेरी life story है क्या, कि we started off with nothing to where we are today. Sir, the introduction itself, mashallah, it's super, super, super motivating, and I really enjoyed listening to that. I'm sorry for the loss of your father, and I'm sure that you got to learn about the relationships, the value of relationships, as in the value of family, and you learned how other people are not your family, and are कि वो सब जब आपके फादर या आपके मदर आप उनसे डिस्टेंट हो जाते हो तो वो सब फिर they try to they basically show their true colors. So you've experienced all of that, and I'm sure you've now, mashallah, grown into a big shot yourself. And sir, I truly, truly admire the story, and I believe it's extremely motivating. जब introduction इतना motivating था, तो फिर आगे interview कितना motivating होगा. Thank you so much, sir, for
sharing this experience of yours. On- So could you tell us a little more about W for Work, as in how you started this company? But I wanted to know a little about W for Work itself, as in how it operates and what kind of services do you provide, and what exactly is W for Work? का question था कि tell you more about work. Yes. ठीक. So work is a telemarketing. अब हम बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया में ग्लोबली. इंडिया बिग मार्केट मार्केटिंग. पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत कोशिश की है पिछले 15 सालों में इसको ग्रो करने की, उसको आगे लेकर जाने की. और पाकिस्तान के अंदर भी एमर्जिंग मार्केट है. पाकिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज है टेलीमार्केटिंग का कि हमारी पॉपुलेशन 70% population is under the age of 35, so we have a huge population of youngsters जो इसका एडवांटेज उठा सकते हैं. अब टेलीमार्केटिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है तो है एक्सपोजर और लर्निंग. ठीक है, आपको इंटरेक्शन मिलती है कॉर्पोरेट अमेरिका के साथ और आपको सीखने को मिलता है. यंग बच्चा जो स्कूल जा रहा है या यूनिवर्सिटी जा रहा है या जॉब कर रहा है उसको एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एक बिल्कुल जबरदस्त एनवायरनमेंट का. दूसरी चीज जो इनकम है, क्योंकि हमारी इनकम सारी यूएस डॉलर्स में होती है तो वो मुल्क को फायदा होता है क्योंकि हम इनकम पाकिस्तान लेकर आते हैं. और दूसरा जो जहाँ पे इनकीज हमारे हैं उनकी एवरेज कॉम्पनसेशन जो है मार्केट से बहुत बेहतर होती है बिकॉज यूएसडी में अर्निंग हो रही होती है. और तीसरी जबरदस्त बात ये कि हमने इसको नेशन वाइड कर दिया हुआ है. सो वी डू हैव ब्रांच ऑफिसेस इन इस्लामाबाद एंड लेकिन हमने वर्क फ्रॉम होम को इतने जबरदस्त तरीके से चलाया है कि माशाल्लाह राइट नाउ ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज वर्किंग फ्रॉम होम, जिसमें कराची है, लाहौर है, स्मॉलर सिटीज. उसमें आपको बेसिक सिर्फ लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक हेडसेट चाहिए. बाकी सारी ट्रेनिंग हमारी टीम करती है, सारा कुछ मैनेज हमारी टीम करती है. सो दिस इज बेसिकली. और टेलीमार्केटिंग लोगों को समझ नहीं उनके लिए कि यूएस के अंदर अगर यही ऑपरेशन चल रही होगी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. तो क्लाइंट्स क्या करते हैं कि क्लाइंट्स ने कॉस्ट को कट करना है तो वो जो है डेवलपिंग नेशंस में भेज देते हैं, आउटसोर्स करते हैं. आउटसोर्सिंग के एडवांटेज हमें भी है, उनको भी है. उनके लिए कॉस्ट कटिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द क्वालिटी ऑफ वर्क आवर पीपल डिलीवर एंड द क्वांटिटी दैट वी आर एबल टू डिलीवर इन दैट प्राइस, तो वो अनमैचेबल होती है. पाकिस्तान इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्लेस्ड क्योंकि हमारे लोगों के एक्सेंट्स न्यूट्रल हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं है लोगों को समझने में. सही सही. That's great. I see that you started, your business journey, your entrepreneurship journey, or shall I say, your career at a very young age. There are people in Pakistan who are actually willing to start their career, who want to become young entrepreneurs, but they do not have a proper direction, or they do not have that proper mindset, or then they're not mentored properly. Do you have any advice for them or anything that could help them become a young entrepreneur, start their career at a young age? So basically one thing you'll notice is कि मैं सारे questions के अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ because a lot of our audience does not speak English, तो उनके लिए important है कि वो भी मैसेज समझें. मैं शुरू में सारी वीडियोस इंग्लिश में बनाता था, फिर लोगों ने मेरी बहुत क्लास ली कि भाई हमें उर्दू आती है अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं अब जो है रखता हूँ कि सबको वो समझ आए. So, अच्छा आपका सवाल जो जबरदस्त सवाल है, लेकिन उस जबरदस्त सवाल के पीछे ना एक चीज है जो मिसिंग है. अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, लोगों ने उसके बारे में फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया. शायद एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टाग्राम पे देख के जो है ना आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं या वैसी आपकी लाइफ होती है. तो ऐसी लाइफ नहीं है, ठीक है. और लोगों को इस बात को समझना बहुत मुश्किल है. तो एंटरप्रेन्योर बनना जो है ये एक फैंसी वर्ड बन गया कि भाई आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है. अब एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि आपने एक बड़ा बिजनेस चला दिया या छोटा बिजनेस चला दिया. अगर आपको पैसे बनाना आते हैं ना, तो आप मेरे मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं. डोंट गेट कॉट अप इन दीस फैंसी वर्ड, you're an entrepreneur or you're not, ठीक है. Now the advice, patience, ठीक है. So before you want to become an entrepreneur, before you want to go out there and change the world, first learn. Majority of the people that I meet or who ask me this question, उनकी situation यही होती है कि उन्होंने
टाइम ही नहीं लगाया किसी चीज में उसको लर्न करने के लिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट्स 10 साल के रिजल्ट्स 1 साल में आ जाएं, और मेहनत उन्होंने 1 साल में 3 की हुई है, ठीक है। सो कोई भी जो स्मार्ट आदमी है, जो भी जिंदगी में सक्सेसफुल हुआ है इंसान, वो किसी टैग से या अपने आप को कुछ कहकर सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो इंसान सक्सेसफुल होता है डिटर्मिनेशन एंड फोकस। आपने कोई चीज पिक कर ली, आपने करनी है, उस पर आप टाइम लगाएं। और टाइम का मतलब ये नहीं है 2 महीने लगाए, 3 महीने। टाइम का मतलब है आप 3 साल लगा रहे हैं, 5 साल लगा रहे हैं, 7 साल लगा रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि आपने क्या सीखा है। उस चीज को आप सीख कर फिर आप बिजनेस जो है सेटअप करें। अब मैंने अगर जॉब ना की होती बहुत अरसे और सारा कुछ ना सीखा होता, तो आई डू नॉट बिलीव दैट आई वुड बी सक्सेसफुल डूइंग व्हाट आई एम doing right now. So it is super important that you give yourself that chance of being successful by spending that time. सही सही, that sounds great. I totally agree. हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जाके जहाँ पे हर कोई कहता है यार अच्छा आई एम एन एंटरप्रेन्योर या मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, थिंकिंग कि ये बहुत अच्छी चीज है या बहुत आसान काम है, बट to be very honest, being an entrepreneur, you have to give more than 24/7. You literally have to give more than 24 hours into your work. You have to put into it, and it's not easy at all. I totally agree to that. Towards this leads to our second question, which is I've seen your videos all over social media with your employees, and you're माशाल्लाह से एक बहुत ही jolly boss हैं आप. तो अपने work environment के बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बताएं कि how do you manage to have a work environment where discipline is also followed, and along with discipline आप जो है वो फ्रेंडलीनेस भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्रिएटिविटी को भी आप आगे बढ़ा रहे होते हैं और अपने एम्प्लॉइज को भी बहुत इंकरेज कर रहे होते हैं. दिस इज फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द फोटोज ऑफ यू एंड योर ऑफिस. Not come to the office, but despite that you've been able to pick that up. So I believe that if people enjoy doing what they're doing, they will be successful at it. So we place a lot of focus on people enjoying the job that they have. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है उनसे हम काम अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं, बिकॉज अगर आप किसी भी इंसान को कोई भी चीज बहुत ज्यादा दे दें तो वो भी उस इंसान के लिए अच्छा नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अगर आप जिंदगी देखें तो उसमें बैलेंस रखा हुआ है. अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसमें बैलेंस रखा हुआ है. बैलेंस क्या है कि रिवॉर्ड है, अकाउंटेबिलिटी भी है. अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है. उसी तरीके से हमने बिजनेस को सेटअप किया हुआ है कि वी आर top notch when it comes to making sure people are on time, people are not what do you call it, there's no lack of discipline, they're getting the job done, the business is being taken care of, but at the same time we are making sure that the people are enjoying doing what they do. अब ये environment आप कैसे बनाते हैं? So like I was saying कि the environment जो है वो लोगों को successful भी करती है, वो इंसान को ऊपर भी लेकर जा सकती है, वो इंसान को नीचे भी ला सकती है. तो हमारी कोशिश होती है कि लोगों को फैसिलिटेट करें. 3 चीजें हर इंसान को पसंद है: रिवॉर्ड, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट. चाहे वो एक जैनिटर है, चाहे वो कंपनी का सीईओ है. तो इसलिए अगर आप एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल डूइंग व्हाट यू डू. That's great, great. लेकिन सर there are times when आप किसी को बहुत ज़्यादा recognition दे देते हैं या respect दे देते हैं, and they kind of start to mess up with the discipline in the office or in the work. So how do you deal with that? So just like you should deal with it in the family, because at the end of the day people should know, इंसान एक बड़ी जबरदस्त चीज अल्लाह ताला ने बनाई है. इंसान को आप जितना स्पेस देते ना, इंसान उतना ही उसका एडवांटेज उठाता है. थोड़ी स्पेस देंगे, थोड़ा एडवांटेज ज्यादा देंगे, ज्यादा एडवांटेज. तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है कि सबको पता हो यार क्या चीज मैं कर सकता हूँ और क्या चीज नहीं. तो setting clear expectations is the most important thing. सही सही. मेरा बेटा है, मेरे नेफ्यूज हैं, तो उनको पता है कि क्या चीज वो कर सकते हैं and क्या चीज वो नहीं कर सकते. The same thing applies to anybody in your life, that if you let them get away with things, they are going Exactly.
Perfect, great. My question was that the education system, since you dropped out of school and you said you just did your A levels, तो oh sorry your O levels, तो आपके ख्याल में don't you think our education system is a little flawed कि यार हमें वो थोड़ा सा submissive बनाता है कि यार जब आप अच्छी जॉब अच्छा पढ़ेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, इस कंपनी में जॉब मिलेगी, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, and it's kind of making us a little passive. तो डोंट यू थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम शुड चेंज अ लिटिल के थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को ज्यादा प्रमोट किया जाए और जॉब से हटके हम थोड़ा बिजनेस के बारे में भी सोचें अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐड करने का? जो एक्सपेक्टेशन चेंज हमें भी करने की जरूरत है और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को भी करने की जरूरत है कि जो स्कूल और यूनिवर्सिटी है ना वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनाता, ठीक है? कि जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में होते हैं तो स्कूल या यूनिवर्सिटी आपको यही बताती कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं है, ये डब्बा है आपने इसके अंदर खेलना है, क्या गलत है क्या सही है। जो पढ़ा रहे हैं उन स्कूल्स में वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, वो जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी जॉब की है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि कोई आपका उस्ताद आपको एंटरप्रेन्योर बना दे लेकिन वो खुद नहीं है, तो एक वो गलत एक्सपेक्टेशन है। इसका ये मतलब नहीं है एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और एजुकेशन नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि इंसान को यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना स्किल सेट डेवलप करना है। कोई भी चीज, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज में फंस जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमसे ये कहा पढ़ने को, हमने ये डिग्री की, नहीं था, और बाद में जाके वो अपने 10 साल जाया करने के बाद वो चीज या तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते या वो छोड़ देते। एंड दैट इज व्हाट हैज टू चेंज। सो यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। The reason alhamdulillah Allah has blessed me that I have been successful is not कि भाई मैं पढ़ाई की नहीं, ठीक है? Reason for that is कि पढ़ाई ना होने के बावजूद भी I focused on getting the job done and learning. अगर मैंने वो ना किया होता तो बहुत सारे लोग जो पढ़ाई नहीं करते और वो कहीं भी नहीं पहुंचते, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात कि is our education system outdated or does that need to be upgraded? Absolutely. But rather than blaming other people, I am somebody who always wants to take responsibility, right? It is our responsibility for people like myself, other people जो businesses चला रहे हैं, जिनके offices के अंदर काम कर रहे हैं, कि उनकी वो grooming कैसे करें, उनको वो exposure दें, उनको वो opportunity दें grow करने की और ऊपर आने की जिंदगी में जो उनको खुद मिली है। सही। हर इंसान को कोई ना कोई बनाता है, कोई भी इंसान खुद से नहीं बनता। एक सिंपल सा आप काम उठा लें, जैसे मोची का काम है, जो एक मोची है जूते बनाता है, लेकिन वो जो मोची है उसको भी वो काम कोई सिखाता है। बिल्कुल। कोई इंसान है जो हलवा बनाता है, तो हलवा बनाने वाले का भी एक उस्ताद है। सो कोई भी काम उस्ताद के बगैर नहीं हो सकता। सो द एडवाइस आई गिव टू पीपल इज कि इफ यू आर यंग and you want to be successful in the business world, pick a mentor, pick somebody that you follow, and then make sure to learn from them. And what you're doing is an example of that. अब आपको किसी ने कहा थोड़ी है कि यार आप ये डिजिटल चैनल चलाएं और मेरा इंटरव्यू करें। आपके खुद दिमाग में आपने अपॉर्चुनिटी देखी, फिर आपने इनिशिएटिव लिया, आपने मुझे मैसेज किया, फिर आपने सेटअप किया। Most people die wondering, and I use that as a phrase कि वो सोचते 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 निकल जाते हैं इस दुनिया से, करते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। I see that you make a lot of motivational videos and even the interview is pretty motivational. तो सबका एक ऐसा टाइम आता है जब जो थोड़ा सा डाउन टाइम स्लैक टाइम होता है जिसमें you're the most unproductive at that time. So how do you avoid that slack time या फिर how do you keep yourself motivated enough to motivate others? The most beautiful thing about life is that Allah subhanahu wa ta'ala ने हर दिन बनाया है 24 घंटे का, ठीक है? अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी जिंदगी को एक लंबा दिन भी बना सकता था और एक या फिर एक लंबा महीना जो होता है वो एक दिन भी हो सकता था। उसमें 24 घंटे डालने की क्या जरूरत है?
24 घंटे डाले, 7 दिन डाले हफ्ते में, फिर हफ्ते में एक महीना, हफ्तों में एक महीना डाला, 12 महीनों में एक साल। तो सीखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हर रोज एक नया दिन बनाया है कि सूरज चढ़ता है, फिर गरूब होता है, फिर अगले दिन फिर चढ़ जाता है. That itself is motivation. That tomorrow is another day. You have a new opportunity to do whatever you want with your life. जो आपकी जिंदगी में हो चुका है, उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर नहीं, सकते. बिल्कुल भी नहीं. लेकिन आने वाली जिंदगी है, आप उसको बदल सकते हैं by focusing and changing your today. And so when you that itself is the biggest motivation that you have been given another day by Allah subhanahu wa ta'ala कि आपको अल्लाह सुब्हाना ताला ने 24 घंटे और दिए, जाओ जी लो और कुछ और कर ले, जो हो गया उसको उसकी खैर है. सही. That is how I saw it, alhamdulillah, that Allah subhanahu wa ta'ala only tests you to prepare you for what's to come next. ठीक है. जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आती है, डाउनफॉल आता है, कोई चैलेंज आता है, उसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला फेल. उसका ये मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इज मेकिंग यू गो थ्रू अ प्रोसेस जिससे आप बेहतर निकलेंगे. डायमंड जो है एक बहुत वैल्यूएबल स्टोन है. खवातीन को खासकर पसंद है, खवातीन बहुत सारे पैसे लुटाते हैं इसके ऊपर. लेकिन डायमंड जब निकलता है तो वो उसको तराशा जाता है, तराशा जाता है, तराशा जाता है और फिर जाके वो डायमंड बनता है. The same thing applies कि अगर हम पे मुश्किल ना आए तो we will never be the best form of ourselves. Definitely. And that will get your life. Definitely. So I was saying that you're pretty active on social media, as in on Instagram to be more specific. And I've seen you create a lot of videos over there. You put up a lot of content. So how do you manage your time between, between your family, between your business, as in you have two businesses, mashallah, and obviously content creation. How do you manage time and how do you create such, a valuable content such valuable content that is on your Instagram? Well, first of all, by realizing that you have so much time in this in a day that we waste, that if you put to productive use, you can do a lot with it. So there is 168 hours in a week. Out of that 168 hours, if studying या आप job कर रहे हैं, तो आप maximum 50 घंटे या 55 घंटे करते हैं. And if you are sleeping for 7 days a week, 5, 6, 7, 8 hours लगा दें, 8 hours a day, तो that becomes another 56 hours. तो ये हो गए तकरीबन 100 घंटे, 110 घंटे. उसके बाद आप निकाल लें 20-25 घंटे फैमिली के लिए, घूमना फिरना, खाना पीना. उसके बाद भी आपके पास कम से कम 30 से 40 घंटे बच जाते हैं. 30 to 40 hours is a lot of time. What people don't realize is that time is their most valuable resource. So people end up wasting their time doing something with it. So that is what I try to do. I try to make productive use of whatever time I have. And if I'm traveling in a car, I'll make a video. If I'm sitting down with somebody, I'll make a video. Documenting is more important than creating. A lot of people are focused on creating. But if you're just documenting your life and doing what you're doing and just putting it on video, that's all you got to do. So since I belong to the digital marketing niche, do you think social media marketing is important? I mean, that is the future. आपने कभी सोचा था कि आप किसी भी बंदे से आप अगर इंटरव्यू लेना चाहती हैं, ठीक है, तो आप बस एक मैसेज करेंगी, उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा और वो आपको जवाब देगा और आप उसका इंटरव्यू ऐसे चलाएंगी और उसको लगा देंगे और लोग देख रहे होंगे. बल्कि ऐसा एग्जैक्टली नहीं सोचा था. The time that we are living in, social media is, I mean, पाकिस्तान के अंदर तो अभी भी इसकी सैचुरेशन उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे होनी चाहिए. तो there's a huge opportunity to make use of it. Like e-commerce जो है ना पाकिस्तान में, only 4% of the population right now buys online. That means आपके पास बहुत बड़ी opportunity e-commerce का कोई भी business करने की पाकिस्तान में. बिल्कुल. Which is
बिल्कुल सर, आई टोटली अग्री। एंड हमने कोविड में देखा भी, ई कॉमर्स का जो स्टैट्स थे वो काफी इंक्रीज हुए थे। कोविड जो हमारी पेंडेमिक सिचुएशन जो हम लोग बिन थ्रू इट, तो उस टाइम पे ऑनलाइन शॉपर्स भी इंक्रीज हुए एंड द पीपल हु वांटेड टू स्टार्ट देयर बिजनेस, उनको भी टाइम मिल गया तो उन्होंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह सेटअप कर लिए थे। सो दैट वाज अ वेरी गुड एंड अ वेरी ग्रेटफुल थिंग टू सी हैपनिंग इन पाकिस्तान. Sir, for example, let's just assume that everything vanishes. Everything that you have right now, your business and everything, it just vanishes within a few seconds, and you are given an opportunity to start from scratch. तो किस तरीके से आप चीजों को लेके चलेंगे और किस तरीके से आप बिल्कुल नया, जब कुछ भी नहीं है, आप किस तरीके से वापस बिल्ड करेंगे? तो मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी पिछली कंपनी छोड़ी, तो मैंने जब वर्क स्टार्ट इसी तरीके से स्टार्ट किया था। हमने 2017 मई में स्टार्ट किया था विद 8 पीपल, एंड वी फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्ड, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। लेकिन मुझे एक चीज पता कि अगर मैंने पहले एक दफा कोई चीज अचीव कर चुका हूं, तो वो तब जब मुझे कुछ आता नहीं था, तो जब आता है और सब कुछ चला भी जाए तो इंसान दोबारा उसको बना सकता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब उस टाइम पे करा दिया, जब कुछ था ही नहीं मेरे पास, ना मुझे नॉलेज थी, ना बिजनेस के बारे में पता, ना कुछ पता, तो जब उस टाइम पे कर लिया, तो जब आपको आता है, योर बिगेस्ट एसेट इज नॉलेज। इफ यू हैव द नॉलेज, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। सही सर। तो सर, how do you manage the business? As in, obviously there might have been times जब financial loss ज्यादा हुआ होगा, जब profits बहुत limited हुए होंगे, when you're not able to pay your employees properly. How did you go about it? How did you kind of managed and handled everything? By remembering that profit comes from Allah subhanahu wa ta'ala and Definitely. loss comes from him. लोग चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब प्रॉफिट दे तो वो कहते हैं कि यार ये तो मैंने किया है, ये मेरी सक्सेस है, कि मैंने सब कुछ किया है। जब लॉस आता है कहते हैं बस ये अल्लाह की तरफ से आ गया। ठीक, सही सही। तो प्रॉफिट भी, लॉस भी अल्लाह से आता है। अब आप अपने आप को इस सिचुएशन में हैंडल कैसे करें? आप इससे, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यू विल नेवर बी एट लॉस, देन यू आर द रॉन्ग पर्सन टू रन अ बिजनेस। Definitely. सही है। How do you overcome those times? By remembering why you started in the first place. देखो, running a company or being successful, there is no trophy at the end. आपको कोई ट्रॉफी नहीं दे देगा आखिर में 10 साल बाद कि भाई आप सक्सेसफुल हो गए। जी जी जी। ये एक ongoing struggle है। तो कोई भी चीज जो ongoing struggle है, उसका मतलब ये कि जो आप रोजाना की प्रोसेस है उसको अगर आप एंजॉय नहीं करते तो आप चैलेंज ही रहेंगे। उसका ये भी मतलब है कि आपको मार भी पड़ेगी और आपने खड़े भी होना है। वो वक्त भी आएगा कि जब एफर्ट कम डाल रहे होंगे और बहुत आगे जा रहे होंगे। तो when we started for the first 2.5 years we did not make a profit। अच्छा। ठीक है, 2.5 साल हमने 8 बंदों से स्टार्ट किया था। अब माशाल्लाह 500 प्लस हेडकाउंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने 2.5 साल बीच में प्रॉफिट नहीं बनाया था जब हमारे पहले 2.5 साल थे। सही, लेकिन सही। मुझे ये पता था तो हम बेस सेटअप कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला चाहेगा तो जब वक्त बराबर आ जाएगा तो वो लॉन्च हो जाएगा। जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट को आप बिल्कुल तैयार करते रहते हैं और फिर फाइनली वो आखिरी 30 सेकंड में वो थ्रस्ट मारते और आगे निकल जाता है। बिल्कुल। अब वो रॉकेट वो सेकंड में थोड़ी ऊपर गया, उसके पीछे मंथ्स एंड इयर्स की प्रिपरेशन है। सही सर। यहीं पे आपने क्योंकि ये बात की कि हाउ अल्लाह डिफाइंस के मतलब सब चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इवन द प्रॉफिट एंड द लॉस। तो व्हाट आई डू कि मेरी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, वट एवर आई अर्न, वेदर आई एम अर्निंग 500 रुपीज और वेदर आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज, व्हाट आई डू इज कि मैं उसमें से मैंने परसेंटेज सेट किया हुआ है कि वट एवर आई एम अर्निंग, मैं उसमें से 5%, आई हैव डन दिस बिजनेस विद अल्लाह and whatever I'm earning, I take out 5% of my earning and I always donate it. तो वो जो भी 5% होता है, चाहे वो 200 रुपए बने या वो 80,000 रुपीज बने, जो भी बनता है वो आई कीप इट असाइड कि ये मेरा अल्लाह मियाँ से प्रॉमिस है, ये मेरी पार्टनरशिप है, सो आई हैव टू गिव इट टू
somebody who's in need or I have to help somebody out. तो वो, and to be very honest, मैंने शुरू से ये किया है, and मेरा बैंक अकाउंट आज तक कभी खाली नहीं हुआ है, कभी नेगेटिव में नहीं गया, and this for me this is the one and only reason कि यार ये वजह है क्योंकि मैंने अल्लाह मियां से पार्टनरशिप की है, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो ही नहीं सकता. So I have this firm belief कि यार जब आप अल्लाह मियां से पार्टनरशिप करते हो तो like there is no going back, or there is no thinking of the fact कि मैं unsuccessful हो जाऊंगी या मैं loss पे चली जाऊंगी. You said it beautifully. I couldn't have said it better. Any person जो देता है, anybody who is a giver, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नीचे आने नहीं देता. बिल्कुल बिल्कुल, I totally agree. System that Allah subhanahu wa ta'ala has. मैंने If मैंने you were अपने a हर giver, student, if you get it back for sure. डेफिनेटली मैंने अपने हर स्टूडेंट को बोला यार मेरी एक बिजनेस एथिक है सबसे ज्यादा जो मैं जिसके ऊपर फोकस करती हूँ, एंड दैट इज आप ये करना शुरू कर दें, ये टैक्टिक आप अपना लें और फिर आप देखें आपका बैंक अकाउंट कभी खाली ही नहीं होगा. तो वो दिस इज व्हाट आई डू. काफी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समझ है ही नहीं. बिल्कुल सर, it's important. It's like आप you're giving back to the society as well this way. You're helping people out who are in need. तो सब चीजों को आपने फोकस ही करना होता है. Balance again, like you said earlier, कि balance is what's important, and Allah has given, Allah has created balance as well. कि accountability भी है और जितनी accountability है उतना ही reward है. So yeah, this is again something that I would like to quote again, कि balance is very important. Sir, any kind of advice that you would give to young entrepreneurs or young people in general who, who want to get successful and are looking forward for something कि यार कुछ मिल जाए, कुछ समझ आ जाए कि कर लें और फिर हम आगे निकलना चाहते हैं. People, there are people who want to get successful but they're unable to. तो कुछ ज़ाहिर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, समटाइम्स पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं कि यार फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल इश्यूज कुछ भी कि दे आर नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स फॉर देम टू वर्क. तो उसके लिए कोई एडवाइस? So here's what I'm going to say to you and say to everybody who's watching. That start. People who don't start will never get anywhere. तो जो इंसान चलता है ना कहीं ना कहीं पहुंच जाता है. जो इंसान चलना शुरू ही नहीं करता उसने कहीं नहीं पहुंचना. मैं बहुत सारे ऐसे कि वो सोचते तो बहुत हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वो करते नहीं है. So getting things done, getting started is a million times more valuable than thinking and planning. Too much time is spent on thinking and planning and very little time is spent on getting things done. And that is something that if people start doing more of, now the reason why people don't do more of that is because they believe that they might fail. And if you're afraid of failure, then you can never be successful in life. I totally agree to that. जिन चीजों में मैं सबसे ज्यादा थिंकिंग करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ, वो मैं कभी लॉन्च ही नहीं कर पाती. एंड द थिंग्स दैट आर जस्ट डन इन एकदम से बस यार करना है, and I just open my laptop, I open my my phone and I just start making videos and start making content or a course वगैरह से related. So it just launches on its own. I don't do anything. It just it's just there in the market. I mean, that's how I started the social media. Of course, talk to my people and motivate them. तो मैंने कहा यार कि अगर हमारे लोग अपने इंस्पायर होते हैं तो I should extend this message to other people. And I just picked up my phone and started making videos. बिल्कुल raw videos थी, वो बनाते अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जहाँ पर हैं और अभी भी मेरे मुताबिक हम बिल्कुल स्टार्ट में, because there is a lot more people जिनको हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी डाल सकते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इम्पैक्टफुल है, आपके दिमाग में आइए, कर दें बजाय कि आप सोचते रहे उसके बारे में. बिल्कुल बिल्कुल. One is obviously COVID. एक बहुत चैलेंजिंग टाइम गुजर है सबके लिए. तो एक इम्पोर्टेंट बात करने की, क्योंकि लोग इस टाइम पे डरे हुए भी हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी इस बारे में. तो मैंने आज एक पोस्ट लगाई थी सुबह और the title was Why Corona? Why Corona? Yes, I read that post. People are not
spending time understanding कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आखिर ये चीज भेजी है क्यों. Exactly. अल्लाह सुब्हाना इतने अरसे से चला रहा है और पिछले 100 साल में तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है. बिल्कुल. और और अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया को रोक दिया सब कुछ. कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इफेक्टेड नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इफेक्टेड नहीं है. पूरी की पूरी पॉपुलेशन दुनिया की affected by one small thing that you not even see. Exactly. कोई भी अक्लमंद इंसान है ना, वो इस उम्मीद में नहीं बैठेगा कि भाई ये किसी तरह से 2 महीने 3 महीने 6 महीने इस साल गुजरे, वैक्सीन आए तो फिर से मैं पार्टी अपनी शुरू कर दूं. ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. अक्लमंद इंसान है वो ये सोचेगा अल्लाह सुब्हाना ताला को क्या जरूरत थी ये भेजने की, आखिर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसा किया क्यों है. तो जब आप ये सोचने लगेंगे तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी खुद से बात कि अल्लाह सुब्हाना ताला has done this for 3 reasons. It is either an invitation from Allah subhanahu wa ta'ala, it is either a warning from Allah subhanahu wa ta'ala, or it either is a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है. ये कैसे आप डिटरमिन करें कि ये आपके लिए पनिशमेंट है या ये आपके लिए इनविटेशन है. ठीक है. और वो आप इस तरह डिटरमिन करेंगे कि अगर तो आप अपना रुख मोड़ लेते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ अपनी जिंदगी का, to know that it was an invitation by Allah subhanahu wa ta'ala, and anything, and it could be the biggest trial in this world, the biggest challenge in the world, anything that brings you even one step closer to Allah subhanahu wa ta'ala is 1,000 times better than all the happiness in the world. Definitely. If you do not change your life and you do not take this opportunity to sit back and think as to why is this happening? Why is Allah doing this to everybody? Why does Allah want this to happen? If you do not understand that and you continue to live your life the way you are and you don't even make a change, I feel and I believe that you have missed out on a big opportunity. Pandemic जो है वो 100 साल में एक दफा आता है. बिल्कुल. Historically देखा कई 500 साल में आया है कई दफा. तो अगर मैं इसको अपने नजरिए से देखूं तो I believe that this is an opportunity to change your life, because इस टाइम पे आप बाकी दुनिया के साथ वो चीजें नहीं कर सकते जो आप पहले करते. तो आपको निकलने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका दिया इसके अंदर. आपने फियर भी है, बाहर भी आपका कम जाना है, लोगों से इंटरेक्शन भी कम है, मतलब कि जो चीजें आप पहले नॉर्मल लगती थी वो आप नहीं कर सकते. So take this as an opportunity to get closer to him. And if you don't, और ये टाइम गुजर जाता है, this pandemic is a punishment. Definitely. So that is the difference between punishment and this being an opportunity or a blessing by Allah subhanahu wa ta'ala. Because anything that comes from Allah subhanahu wa ta'ala is not bad for you. You have to believe that Allah subhanahu wa ta'ala does not do anything for any being that is bad for that human. We just don't know it because we don't know what's to come in the future, and because we cannot foresee कि हमारे लिए बेहतर कैसे है, हम इससे कैसे ग्रो करेंगे. तो जो इंसान ये बात समझ गया ये पैंडेमिक जो है ब्लेसिंग है, और जो ये नहीं समझा उसके लिए ये एक पनिशमेंट है. Definitely. Great words, sir. Great words. Definitely. Second thing I want to talk about, and we have people watching on Instagram, on Facebook, we're going to put this content out, कि यार आपने एक बड़ा मुल्क बनना है ना, अजीम मुल्क बनना है, कुछ करना है अपनी जिंदगी में, तो सिर्फ एक चीज चेंज कर लें
तो ना हमारी अपनी जिंदगी बल्कि हमारी अपनी जिंदगी, हमारे इर्द गिर्द लोग उनकी जिंदगी, और ये मुल्क ही बदल जाएगा। और वो चीज है कि अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें। बहुत सारे आप लोगों को जानती होंगी अपने इर्द गिर्द, हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन बातों पे भी झूठ बोलते हैं जिससे ना किसी का फायदा हो रहा है ना किसी का नेक्स्ट नुकसान हो रहा नुकसान हो रहा है, जी जी जी। है, ऐवे ही बोल दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो एक मुसलमान है ना, वो वो बाकी झूठ सब नहीं कुछ बोल सकता। बोल सकता, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हम लोग 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक झूठ ही चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैसे कमाने के लिए, कोई झूठ बोल रहा है किसी का एडवांटेज उठाने के लिए, कोई झूठ बोल रहा है एवं ही। ये झूठ बोलना, if we are able to stop lying, I am telling you that not just our own lives but that of our fellow people, fellow countrymen would change, because we would एग्जैक्टली। change as a society. because अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे ना तो आप हलाल कमाएंगे। बिल्कुल। जब आप हलाल, तो वो हलाल के पैसे से आपका खून बनता है, उसी खून से आपकी फ्यूचर जनरेशंस आती हैं। तो जो इंसान झूठ बोलता है उसने अपने हलाल को हराम कर लिया, जिससे आपका खून बन रहा है वो ही खराब हो गया, तो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी वैसी ही निकली। तो अगर बिल्कुल हमने पाकिस्तान अपनी जिंदगी को बदलना है, स्टॉप लाइंग एंड स्टार्ट विद योरसेल्फ। दूसरों को प्रीचिंग ना करें, बिल्कुल। अपने आप से कोशिश करें। मैं अपने आप को चेक करें कि यार ये जो छोटा झूठ मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे इसकी हम्म। क्या जरूरत है। अब मजेदार बात मैं आपको बताऊं, इंसान झूठ बोलता क्यों है? अगर कोई कॉन्सिक्वेंशियल झूठ हो, वो ये समझता है कि यार मेरा आउटकम जो है ना किसी और इंसान के हाथ में, हम्म। आउटकम है ही अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में। बिल्कुल। अगर आप, और मैं इसी बात पे ना, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू, एंड इट्स हम्म। इन एन माय लाइफ दैट आई ऑलवेज शेयर विद पीपल। सो 2007 में ना, सॉरी 2009 में मेरे हम्म। पास एक गाड़ी थी, होंडा सिटी। सही। तो वो मैंने बैंक से ली हुई थी लीज के ऊपर, ठीक है, रेंट फाइनेंस कराई हुई थी। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च किया दीन के बारे में, तो मुझे समझ आया कि यार फाइनेंसिंग जो है ना वो सही नहीं है, वो सही इंटरेस्ट नहीं। बेस्ड है। तो हम्म। जो है ना नहीं, तो मेरे पास पैसे थोड़े से ही थे कि अगर मैं उसको बेचता, क्योंकि अभी बैंक के पैसे भी रहते थे, तो उसको मैं हम्म। बेचता तो मेरे पास पैसे कम ही थे अगली गाड़ी लेने के लिए। हम्म। खैर, वो गाड़ी की हालत जो है ना बहुत खस्ता हो चुकी थी, ठीक है। सही। वो गाड़ी चली 285,000 किलोमीटर वो गाड़ी चली थी, ठीक है। हम्म। वो गाड़ी का इंजन था, पीछे से वो एक्सीडेंट हुई हुई थी, सही। और उसके ऊपर ना इर्द गिर्द स्क्रैचेस पड़े हुए थे। गाड़ी जो है ना बिल्कुल खस्ता हालत में थी। तो मैंने जब अपने दोस्तों यारों को बताया कि यार मैंने गाड़ी बेची है, तो मुझे सब ने कहा कि भाई इसका मीटर पीछे कर दो, ठीक हम्म। है, और ये चीजें ठीक करा दो, और किसी को बता ये जो है ना हुआ हुआ है। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल। मीटर इसका पीछे कर दूं, मैं झूठ बोल के। तो उन्होंने कहा कि भाई हम शर्त लगाते हैं 2,85,000 के ऊपर ये गाड़ी नहीं बिक सकती। तो मैंने कहा यार अगर नहीं बिकेगी तो चलो ठीक है, मैंने थोड़ी बेचनी है, अल्लाह सुब्हान ताला ने बेचनी है, अगर नहीं बिकेगी तो कोई बात नहीं। सही। तो मैं आज भी वो एड पड़ा हुआ है, वो मैंने एड लगाया पार्क व्हील्स के ऊपर, और वो मैंने एड में लिखा, तस्वीरें लगाई गाड़ी की, और मैंने लिखा कि ये गाड़ी 285,000 किलोमीटर चली भी है, ये ऑयल खाती है, ये यहाँ यहाँ से लगी, ठीक है, इसके टायर खत्म है, लेकिन सही। बाकी गाड़ी फिट। सही। मैंने उस गाड़ी के मांगे 750,000 रुपीज। हम्म। तो ठीक एड लगाने के 4 घंटे बाद ना मुझे एक बंदे की कॉल आई। हम्म। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं कैप्टन फलाना बोल रहा हूँ, तो आपने एक गाड़ी का एड लगाया था, हम्म। तो वो गाड़ी मैंने खरीदनी है। तो सही। मैंने कहा जी सही है, आप आ जाएं गाड़ी देख लें। कहते नहीं बेटा मैंने गाड़ी देखनी नहीं है, आप बस आप डन कर दें गाड़ी। अच्छा। मैंने मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा जी आपने गाड़ी देखी नहीं है, उसकी कंडीशन मैंने लिखी हुई है, आप आके देख लें, पसंद कर लें फिर।
कहते हैं बेटा मैंने आपकी गाड़ी से पहले जिसकी भी गाड़ी देखी है ना उसने यही लिखा हुआ है कि उसकी गाड़ी परफेक्ट है। अच्छा। तो एक आप वाहिद इंसान मुझे मिले जिसके एड में ओरिजिनल माइलेज था, ओरिजिनल हाँ। गाड़ी की कंडीशन, तो मैंने गाड़ी आप ही से लेनी है। व्हेन आई बाय फ्रॉम समबडी जिसका मुझे पता है कि यार ये मसले हैं, वर्सेस फ्रॉम मुझे मसलों का पता ही नहीं है, सही। ठीक है। मैंने कहा जी जबरदस्त हो गया। वो शाम को आए, मैंने 750 लगाए थे गाड़ी के, उन्होंने मुझे 735,000 दिए और वो सेम डे गाड़ी ले गए। सही। और उस एग्जाम्पल से मैं दो चीजें सीखा था और लोगों को मैं आज तक बताता हूँ। एक कि सच बोलने वाला इंसान कभी भी लॉस में नहीं रहता। बिल्कुल। हो टेम्परेरली कि शायद वो लॉस में है, लेकिन जब वो वापस देख के बराबरी देखेगा ना कि यार नफा नुकसान मेजर करेगा ना, तो सच बोलने वाला कभी भी लॉस में नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप कोई भी चीज इस नियत से करते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला की खुशी के लिए मैं कर रहा हूं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कभी भी उसमें कोई आपके लिए मुश्किल नहीं डालता। और उसकी एग्जांपल है कि मैंने वो गाड़ी बेची थी विद द इंटेंशन कि मैं इंटरेस्ट पे गाड़ी ली हुई है, तो मैंने इंटरेस्ट की गाड़ी नहीं इस्तेमाल करी। आप है ना, मैंने आपके लिए, आपने मुझे रीच आउट किया कि अली भाई इंटरव्यू करना है, मैंने आपको टाइम दिया, छोटी सी चीज है, ठीक है, लेकिन आपको याद रहेगा कि यार मैंने मैसेज किया था अली भाई को, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरे लिए उन्होंने अवेलेबल हुए और जबरदस्त हमने जो है ना एक डिस्कशन हुई हमारी, ठीक बिल्कुल। है। कल को मैं आपसे कोई छोटी सी चीज कहता हूँ कि आमना ये चीज चाहिए, ये करनी है, तो you will actually love to do something back. That डेफिनेटली is डेफिनेटली। how human nature is. या। Think and put this in the context of Allah subhanahu wa ta'ala. कि how great Allah is, that when you do something for Allah, how can He not do something back for you? Like डेफिनेटली डेफिनेटली। anything back, मतलब अगर आपने अल्लाह के लिए नियत ही की है तो अल्लाह ताला उसको सवाब आपको उसी टाइम दे देता है, बेशक फाइनेंशियली दे या ना दे। बिल्कुल। So my message, and I spent a few minutes talking about it because this is a big thing and a very important thing for me, that डेफिनेटली। stop lying as a society. अगर या। हमने अपनी सोसाइटी खत्म कर दिया ना, तो हम एक बड़ा मुल्क भी बन जाएंगे और एक जबरदस्त कौम भी बन जाएंगे, और हमारी जो औलाद होगी आने वाली, दे आर गोइंग टू बी ग्रेट पीपल। हमारा जो टाइम थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन उस टाइम में व्हाटएवर वी नाउ टू चेंज आवर फ्यूचर वी नीड टू डू। पाकिस्तान is the biggest blessing that we've been given, और पाकिस्तान के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। तो एक ये छोटी सी जो है ना, मेरी हर इन रिक्वेस्ट है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, बिजनेस लाइफ में झूठ को जो है ना, खत्म झूठ कर को दे। उड़ा दें, बिल्कुल झूठ को बिल्कुल। खत्म। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही आपने अच्छी बात की है। इनफैक्ट अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखें, मैं इट्स नॉट दैट कि मैं भी ऑब्वियसली करती हूँ, आई एम नॉट अ फरिश्ता, मैं कोई बिल्कुल ऊपर से नहीं कि मैं बोलूँ नहीं यार, कभी-कभी कोई ना कोई एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम सोसाइटी में देखें तो इवन लाइक जितना कोई हायर उस पे भी है, स्टेटस पे है, चाहे वो जितना लोअर स्टेटस पे है, इवन सब्जी वाले तक, इवन दे आर लाइंग कि नहीं ये उस नाप तोल में कमी करते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो यू नो वी डेफिनेटली नीड टू एलिमिनेट दिस थिंग, दिस यू नो जो ये एक एलिमेंट है वो हमें अपनी सोसाइटी से बिल्कुल एलिमिनेट करना पड़ेगा। So yeah, I totally agree to it, and these are literally the golden words that I could have from you. Jazakallah. In closing, uh, like we talked about work at the start, give this message out to everybody who's watching, that work is a home-based telemarketing job for you, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास वॉइस जॉब्स भी हैं, नॉन वॉइस जॉब्स भी हैं। मैं आपको छोटे से एक बताता हूँ, मेरे पास स्टोरीज बहुत सारी होती हैं, इसलिए बहुत सारी मैं वीडियो भी बना लेता हूँ। तो हमारे घर में हमारा, उसका नाम न्याज है, तो न्याज भाई मेरे पास आए कि यार अली भाई मेरा भांजा है, वो हमारे इधर एक घर में ना गार्ड लगा हुआ था, तो यार ना जॉब देनी है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको जॉब दे देते हैं। मैंने कहा आप उसको भेज दें।
तो वो ऑफिस आया तो मैं समझा कि उनको जो है ना मतलब कि सफाई वगैरह की जॉब है, कोई ऐसी जॉब उनको चाहिए। मैंने कहा भेज दे। वो ऑफिस आया लड़का, इसकी एनवायरनमेंट देखी ना तो वो लड़का आ गया मेरे पास कि अली भाई मैं जो है ना ये कॉलिंग वाली जॉब करना चाहता हूँ। मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, तुम्हें हम सिखाएंगे भी बताएंगे भी, कोई मसला नहीं, करो तुम। मैंने उसको दे दिया अपनी ट्रेनिंग टीम को कि भाई इसको ट्रेन करो, तैयार करो। उन्होंने पहले दिन उसको ट्रेनिंग शेनिंग स्टार्ट कराई तो कहते हैं कि ये बंदा जो कर नहीं सकता, ना इसको अंग्रेजी आती है ना कंप्यूटर की समझ है। मैंने कहा वो करना चाहता है? कहते हैं करना चाहता है। तो मैंने कहा वो कर लेगा। सही। थर्ड मंथ नाउ, एंड लास्ट 2 मंथ से उसकी सैलरी बनी है, पिछले महीने 40,000 बनी थी और एक महीने 43,000 बनी थी। ठीक है, माशाल्लाह। आप जो है आपको कुछ आता है या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितने दिल से करना चाहते, मेहनत करना चाहते हो उससे फर्क पड़ता है। सो दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर फॉर एवरीबडी वर्किंग फ्रॉम होम। यू कैन वर्क पार्ट टाइम, यू कैन वर्क फुल टाइम, you can do a few hours a day, a few days a week, it doesn't matter, but do something with your life. If you're sitting at home, get yourself a job, apply on our website. Other than that, follow me on Facebook, follow me on Instagram for this daily dose of positivity. I don't call it motivation, positivity, क्योंकि हमें positivity की बहुत सख्त जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक आई है, एग्री टू दैट। talking to me and taking out your time as well. Your time is as valuable as mine. नहीं बहुत सर, उतना ही नॉट valuable. एज वैल्यूएबल एज योर्स, डेफिनेटली नॉट एज वैल्यूएबल एज योर्स। So थैंक I believe you did a great job. It was a great interview. Great talking to you. you, likewise sir, thank you so much for taking out time for me, and the entire interview went really well, mashallah, बहुत motivating था मेरे लिए भी, so I'm sure it's going to be motivating for the rest of the people out there as well, and thank you so much again sir, thank you so much. Barakallah. Take care. Take care sir, Allah Hafiz.